So Sneha, we are continuing with the respiration. Okay, last part of the lesson, and we are completing the lesson today, right? And as you know कि ये जो lesson है physiological part, कि we have learnt in detail exactly कि how the respiration takes place within the living cells, in which, considering an ideal situation, there is a breakdown of glucose completely. That's why we say aerobic respiration to be complete oxidation process, है ना? So aerobic respiration, the first step, that was glycolysis, we have completed, in which we have seen that the products are pyruvic acid. Okay, remember the number of molecules which are formed and whatever intermediate compounds are there, uske numbers, uske molecules, everything you have to learn. Okay, then the pyruvate enters into acetylation step, and acetylation, acetyl coenzyme A produced, continues forward to form the Krebs cycle. This also we have discussed in the previous lecture. तो ये पूरा अच्छे से समझ में आया Krebs cycle, right? So you know very well that one molecule of glucose अगर हम starting point समझते हैं, so there are two Krebs cycles that take place, right? Because there are two pyruvic acid molecules produced, each one enters into each Krebs cycle. And what are the products which are produced in Krebs cycle? You are getting two molecules of NADH2. Sorry, three molecules over here, but two Krebs cycles, so 6 molecules. Okay, one FADH2, so 2 FADH2 total, and GTP, which is equivalent to 8. Okay, so ये जो तीनों हैं, these three are energy sources. It is like one molecule of NADH2 is equivalent to 3 molecules of ATP. One FADH2 is equivalent to 2 molecules of ATP. It's like if you are having a 500 rupee note and दुकान में जाके बोले मुझे छुट्टा चाहिए, तो 100 रुपए के 5 नोट मिलेंगे. So it's like you take one NADH2, you will get 3 molecules of ATP. उतना एनर्जी मिलेगा. ऐसे याद रखना है, ठीक है? ये याद रखना है because we are going to see the balance sheet of a complete respiration now. So after aerobic respiration, once these products are produced, then the next important step which takes place is ETS, also called as electron transport chain or electron transfer system. Okay, now you remember glycolysis कहाँ पे होता है सेल में? Glycolysis mitochondria में. Glycolysis साइटोप्लाज्म में. Exactly. और ETS नहीं, वो Krebs cycle माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे? हाँ, वो एकदम अंदर हैं? वो नहीं, मतलब वो जो मैट्रिक्स एग्जाम में ऐसे लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर होते हैं. नहीं, वो मैट्रिक्स में. Yes, that is important. Okay, Krebs cycle takes place in the matrix of the mitochondria, and ये जो last step है ETC, electron transport chain, ये होता है mitochondria के F1 particles में. You remember that F1 particles? 5 names for one and the same thing: oxysome, elementary. हाँ, है ना? तो mitochondria का जो inner membrane है, उसके surface पे ये F1 particles होते हैं, on those crista. Right? So on these F1 particles, ये जो step हो रहा है electron transport chain. Okay, now glycolysis को हमने pathway बोला, Krebs cycle बोला, and this is a chain. That means there is a series of compounds present, one after the other, on the inner mitochondrial membrane. Okay, and these are carriers and enzymes which are present, जो F1 particles पे present. And ये जो carriers and enzymes है, they are present in the form of many complexes. It's not one compound or something, it's a complex. Okay, so it's like you and your friends are standing in a line, suppose. So you are standing in the front and there are friends standing behind you. Okay, तो यहाँ से किसी ने ball फेंका, you caught the ball, you passed on to the next one, that person caught the ball, passed on to the next one. So you caught the ball, you are reduced. You throw away the ball, you become oxidized. यही काम हो रहा है ETC में. You can see this. ऐसे series है.
You can see complex 1. Complex 1 consists of NADH dehydrogenase. Okay, complex 2 over complex 2 इधर है, तो it is क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, succinate dehydrogenase. Okay, then complex 3 is cytochrome BC1 and complex 4 is cytochrome oxidase. ये 4 complexes के नाम याद रखें. Okay, so out of the 4 complexes you are seeing 2 complexes जिसमें नाम दिया हुआ है cytochromes. Okay, now cytochromes are copper containing compounds. And on the inner mitochondrial membrane, cytochromes का arrangement एक particular order में है. Okay, there are see कौन से cytochromes हैं? Cytochrome B, C1, C, A3. 5 type के cytochromes. Okay, in the same order they are present on the inner membrane. Cytochrome B, C1 is present together, and that is cytocomplex 3. ये देखना, यहाँ BC1 करके लिखा हुआ. Okay, and complex 4 में it is cytochrome A and A3. Can you see that? तो A and A3 उन दोनों को मिलाकर बोलते हैं cytochrome oxidase. तो like that on the F1 particle, अब यहाँ पे ये कौन सा पोजीशन दिखाया गया है? You can see this is the inner mitochondrial membrane. So this side is inside, that is the matrix of mitochondria, and this side is the outer part. Okay, inner membrane space करके लिखा है. So that's how they are arranged over here. So basically electron transfer chain ये क्यों हो रहा है? Because whatever energy is required उसको पूरी तरह से यहाँ पे harness करना है. Okay, so it's like you can say 2 main steps which are taking place overall in the ETC. One of them is terminal oxidation. Okay, and the other one is oxidative phosphorylation. ये 2 steps याद रखना है जो ETC का पार्ट है. Terminal oxidation का मतलब है कि it's like whenever protons, ये देखना यहाँ पे at every stage you can see protons are carried out. तो protons को pump out करना जरूरी है from these NADH and all this, ताकि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स के थ्रू 1 by 1 पास करके अल्टरनेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, at the end of which these protons, the remaining electrons, they are given to the hydrogen and you get water molecule. इसके एंड में you are getting water molecule. That is why respiration का जो general reaction हमने देखा था उसमें देखना one of the products formed is water, H2. वो यहाँ पे एंड में बन रहा है. ये देखना, this is water it is created. And ये जो water molecule बन रहा है यहाँ पे उसको बोलते हैं metabolic water. Okay, this is the product of respiration, or you can say one of the byproducts of respiration. So in this process, what is happening? There are 2 different places where ATP energy is produced. ADP and IP को combine करके ATP energy produce कर रहे हैं. तो water molecule का जो बनने का हो रहा है यहाँ पर, that is terminal oxidation, the final oxidation. And बीच में उसका एनर्जी को यूज करके जो ATP बना रहे हैं, that is oxidative phosphorylation. Okay, तो BC1 के बीच में ATP मॉलिक्यूल बनेगा, A3 के बीच में ATP एनर्जी बनेगा. Got it? So and like that it is nothing but passing of electrons from one to the other. And यहाँ पे metabolic water याद रखना, the final water molecule which is formed. Okay, the reduced molecular oxygen reacts with the protons to form the water molecule. Okay, and ये याद रखना है कि cytochrome C oxidase करके जो बोलते हैं
that is containing cytochromes A and A3 together. Okay, and for each complex, जैसे complex 1 था NADH dehydrogenase, okay, complex 2 is succinate dehydrogenase, okay, complex 3 is cytochrome BC1 complex, okay, and complex 4 is this one, cytochrome C oxidase. तो कौन से कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो साइटोक्रोम करके बोला गया, द स्मॉल आयन कंटेनिंग प्रोटीन विच आर लूजली एसोसिएटेड विद द इनर मेम्ब्रेन. ओके, तो वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं. ओके, एंड एट एवरी स्टेज H+ इज आल्सो गिवन आउट. वो H+ को ट्रांसफर किए जा रहे हैं. And these are the ones that are used at the end for production of metabolic water. ठीक है, समझा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मीनिंग, what exactly is happening over here. Okay, तो ये F0, if you remember F1 particles, उसका जो बेस था, there was a base, a stalk and a head. तो जो base of the F1 particle which is associated with the inner membrane of mitochondria, उसको F0 part करके बोला गया था. That is where these respective enzymes and all these protons are present. इसलिए ETC is very importantly happening in the F1 particles. And ये जो F0 part है, वहां पर जो protons है, that forms the complex 5, which is present in the inner mitochondrial membrane. तो ये 5 complexes के बारे में याद रखें. Okay, and in this entire process, मतलब ये पूरा process जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, so there is some reason behind that. It's ultimately the transfer of the protons. Okay, H+ जिसको protons बोलते हैं वो constantly remove करना जरूरी है. तो transfer of the protons is accompanied by ATP synthesis. ATP energy maximum possible use कर रहे हैं. उस process को हम लोग ने बोला oxidative phosphorylation. Okay, removal of proton is oxidation, and in that process formation of ATP is phosphorylation. इसीलिए oxidative phosphorylation. So because this both are taking place together, तो इसको नाम दिया गया chemiosmosis. इस process को नाम दिया है chemiosmosis, and this name was given by Peter Mitchell. ये इंसान का नाम है. ठीक है, Peter Mitchell was the one who called this process as chemiosmosis. Like exam में क्वेश्चन आ सकता है कि dash is known as chemiosmosis in respiration. The answer is ETC, electron transport chain. या और भी specific option आएगा तो oxidative phosphorylation. ठीक है, so ETC is clear properly. Okay, so अभी जैसे मैंने बताया 1 NADH2 leads to production of 3 ATP molecules. ये याद रखना. Okay, and 1 FADH2, okay, and complete oxidation can give you 2 ATP molecules. अगर सेल को ATP का ज्यादा जरूरत हो गया, okay, depending upon the physiological condition, the respiratory substrate, if there is more amount of ATP required by the cell, so then NADH2 FADH2 वो भी पूरा यूज कर लेते. ठीक है. So with respect to all this, now this table is very very important to understand. इसको बोलते हैं ATP का balance sheet. जैसे if you are a businessman, you are having your account book. कि इतना इतना मैंने इन्वेस्ट किया, इतना इतना माल बिका, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम लोग अकाउंट शीट बोलते हैं. राइट, एवरी बिजनेसमैन विल कीप दैट ताकि उसको पता रहे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है. राइट, तो उसी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो लाइक एन इन्वेस्टमेंट. कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यूज किया है ना, रिसोर्सेज यूज किए, तो अल्टीमेटली एटीपी का आउटपुट होना चाहिए. तो वो कहाँ पे कितना एटीपी यूज हो रहा है, दैट इज टोटली प्रोवाइडेड ओवर हियर. ये अच्छे से समझ लेना है. से हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स देखा. ठीक है, फर्स्ट वन वाज ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का कंजम्पशन कितना हुआ है, 2 molecules, considering that we are starting from 1 glucose molecule.
तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP molecules were consumed here, right? Then substrate level phosphorylation जो हुआ ग्लाइकोलाइसिस में, वहां 4 ATP बना in the payoff step, you remember, right? तो ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 NADH2 भी बना था, right? So 2 NADH2 बना मतलब 2 into 3, each NADH2 represents 3 ATP molecules, तो 6 ATP हुआ, right? So totally यहाँ पे FADH2 तो नहीं है ग्लाइकोलाइसिस में, राइट? सो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कितना बना? 6 ATP, एंड 6 + 4 दोनों टाइप का फॉस्फोराइलेशन हुआ यहाँ पे, और सबस्ट्रेट लेवल एज वेल एज ऑक्सीडेटिव, इसमें 4 + 6 इन ग्लाइकोलाइसिस, तो यू आर गेटिंग 10, बट 10 में से 2 कंज्यूम किया, सो नेट गेन इज 8। ग्लाइकोलाइसिस वाला समझा? इजी है ना? Similarly, if you see that intermediate step of pyruvate to acetyl coenzyme at one reaction that we saw, तो उसमें कंजम्पशन कुछ नहीं, कंजम्पशन इनफैक्ट दूसरे किसी स्टेप में नहीं हुआ, ओनली 2 ATP आर कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, बाकी किसी में कंजम्पशन है ही नहीं, इट इज ओनली प्रोडक्शन। तो पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम A में there are only 2 molecules of NADH2 which are produced. It's like only 1 molecule is produced, but 2 pyruvate हो गया, तो इसीलिए 2 NADH2, एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ATP के हिसाब से। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो अगेन FADH2 वहां पे है नहीं, सो टोटल 6 प्रोड्यूस्ड, टोटल इज आल्सो 6, नेट बेनिफिट इज आल्सो 6। तो ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP, अगर हम सब कुछ सिर्फ ATP के हिसाब से ला रहे थे, दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग फॉर NADH2 एंड FADH2 बोथ। Okay, so pyruvate to acetyl coenzyme A, you are getting 6 ATP as the net benefit. And now coming to Krebs cycle. तो Krebs cycle में भी consumption है नहीं, substrate level phosphorylation is 1 ATP molecule, याद है? GTP वाला जो स्टेप है, 1 GTP is equivalent to 1 ATP, so we say 1, but 2 Krebs cycle हो रहे हैं, so that is why 2. Okay, and NADH2 कितना बन रहे हैं? 3, गेटिंग इट, बट 3 को 2 बार Krebs साइकिल कर रहे हैं तो 6, एंड ईच NADH2 3 ATP, सो 18। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो पूछ लें। क्लियर? ओके, FADH2, 1 molecule of FADH2 produced in 1 Krebs cycle, but again there are 2 Krebs cycles going on, and each FADH2 represents 2 ATP, तो 4 ATP बन गए यहाँ पे, राइट? सो टोटल is 2 + 18 + 4, which is 24, and there is no consumption. So Krebs cycle में if you consider from 1 glucose molecule, you are getting 24 ATP molecules. समझा ये टेबल कैसे बना? राइट? तो अगर पूरा नेट गेन ऑफ ATP देखा जाए, okay, from glycolysis, pyruvate and Krebs cycle, so totally it is coming to 38 ATP molecules. ठीक है, so in short you can say that 1 molecule of glucose on complete oxidation is able to give you 38 ATP molecules. Got it? और यही अगर हम कंपेयर करते हैं फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो 1 molecule of glucose on complete anaerobic respiration is able to give me how many ATP molecules? anaerobic respiration में
एनारोबिक में ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक के ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस दोनों में सेम ही है। हाँ, तो कितना है नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस का? 80 है। बट उसमें 2 एटीपी काउंट होगा। हाँ, एटीपी 2 ही बन रहे, बिकॉज NADH2 का। हाँ, तो बन हाँ, पहले कंज्यूम बिकॉज होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है ना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किधर होगा? जो लास्ट स्टेप अभी हमने देखा ETC में। तो ETC इज टेकिंग प्लेस ओनली फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलाइसिस में बोला जाए तो 8 एटीपी बोल सकते हैं, बिकॉज NADH2 का भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में ETC इज नॉट टेकिंग प्लेस, सो देयर इज नो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो उसमें जो डायरेक्ट एटीपी बन रहा है बस वही काउंट होगा, एंड दैट नेट गेन इज जस्ट 2। नाउ यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है। तो नाउ इफ यू रिकलेक्ट वन थिंग based on this, let's few minutes back you were admiring maths थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हम लोग उसमें जाते हैं अभी। ठीक है। now you remember in the beginning of the lesson जो मैंने general reaction दिया था respiration का, okay, so we are told that energy which is produced in respiration is in 2 different forms, correct? कौन से 2 forms थे? हीट और केमिकल। Heat and chemical. ठीक है। So now you are aware about the fact that aerobic respiration from one glucose is giving me 38 ATP molecules. हाँ, And anaerobic respiration from one glucose is giving me only 2 ATP molecules. हाँ, 1 ATP molecule is providing how much kilocalories of energy? 7 point ऐसे इंस्टॉलमेंट में बोलते हैं ना। 115। अरे 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 कहाँ पहुंच गई? It is 7.3. हाँ, 7.3। हाँ, 115 कौन बोला? कहाँ से बनी नंबर? Okay, it is 7.3 kilocalories. So using this, now you do some calculation कि अगर 1 glucose molecule से पूरा aerobic respiration हो रहा है, okay, so it is giving me how many kilocalories of energy? मतलब कैसे कैलकुलेट करेगी? 1 ग्लूकोज से टोटली aerobic respiration जब होगा, so how many मतलब वो पूरा kilocalories of टेबल energy? जैसा। 1 glucose नहीं, वो सिर्फ molecule, ग्लूकोज। हाँ, ओके, एक मिनट, 1 glucose molecule complete aerobic respiration is giving you 38 ATP. हाँ, हाँ, 1 ATP is giving you 7.3. हाँ, तो 1 glucose में तो कितना किलो कैलोरीज? यस, 38 इंटू 7.3। 7.3। हाँ, बता कितना आता है आंसर? पेंसिल, एक अरे मिनट ना, अरे अरे इंटू करना पड़ेगा। इंटू करना पड़ेगा। यस, एक मिनट, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अभी के लिए चल कैलकुलेटर यूज कर। ठीक है, फोन से करती है। 7.3 इंटू 38। हाँ, 277.4। 277.4। ठीक है। अभी और एनारोबिक का कितना आएगा इससे बता? 2 3 + 6, 14.6। करेक्ट, इट इज 14.6। ठीक है। अभी यू रिमेम्बर जो मैंने जनरल रिएक्शन बताया था रेस्पिरेशन का, कंसिडरिंग 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज द सबस्ट्रेट, जब पूरा रेस्पिरेशन होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गिवन आउट is 646 kilocalories. ठीक है, complete respiration is giving me 646 kilocalories. ठीक है। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन में आउट ऑफ 646
277.4 is your chemical energy, ATP एनर्जी था। तो इसका जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है दैट इज द हीट एनर्जी। तो अभी परसेंटेज कैलकुलेट, 277.4 out of 646 is how much percent approximately? पता है आंसर? How much percent? कैसे करते हैं परसेंटेज? Into 100 कर। हाँ, वेरी गुड। सो 277.4 okay out of 646 into हीट 100। एनर्जी कितना है? तो हीट बता, एनर्जी का परसेंटेज बताना है ना? ये केमिकल एनर्जी का मिलेगा ना, ओके हाँ। बिकॉज इतना तो केमिकल एनर्जी का है ना। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट कर अप टू 1 डेसिमल प्लेस अप्रोक्स कितना आएगा बता। 0 भी नहीं है कट करने को। कर कैलकुलेटर में कर, बाद में प्रैक्टिस कर ऑन पेपर। हाँ। 2 अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है परसेंटेज? हाँ कर रही है। अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटर में नहीं आता सर। अरे क्यों? सी क्या करना बहुत बड़ा नंबर आता है। नहीं नहीं, ये देख, सी 277.4 into 100 हाँ कितना आता है इसका? into 100। हाँ 27740। तो बस कैलकुलेटर में डिवाइड कर, 27740 डिवाइडेड बाय 646। ओके क्या स्नेहा? हाँ 42.9 हाँ अभी आया ना, 4 तो 42.95 होगा। 42.9 आ रहा है। 90 हाँ 42.9। चल ठीक है, विल आगे कीप इट 4 है ना तो 42.9। आगे। हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो यू कैन इमेजिन कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑल द स्टेप्स, तो अप्रोक्सीमेटली 42% इज गिवन आउट एज केमिकल एनर्जी एंड रिमेनिंग 100 में से 42.9 गया तो कितना बचा? 100 में से 42.9 गया तो 58। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 57%। हाँ ओके, इतना अमाउंट निकलता है हीट एनर्जी। अभी समझ में आ रहा है? हाँ नाउ सेम वे इफ यू डू फॉर एनारोबिक, अब निकाल उसका परसेंटेज। 14.6 इज योर केमिकल एनर्जी, हाँ है ना? 14.6। तो आउट ऑफ 646, तो अभी बता। हाँ 730। हाँ 730 हाँ परसेंटेज, 14.6 परसेंटेज। 730%। 14 हाँ 14.6 into 100। हाँ तो हाँ फिर डिवाइड बाय 1460 2। 1460 अपॉन हाँ 646। 1460। कितना आता है? हाँ फिर डिवाइडेड बाय 2 ना। 2 क्यों? डिनोमिनेटर में एक मिनट हाँ 646 है। नहीं 646। हाँ मैंने वो उससे कर रही थी मैं। स्नेहा, यू नीड सम गरम चाय और समथिंग? 2.26। हाँ, बाप रे 730 बोल दिया, हार्ट अटैक आ गया इधर। इट इज, मैं वो एनारोबिक के वो एटीपी से कर रही थी। हाँ वेरी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.26। अभी कंपेयर दीज टू वैल्यूज, 42%, 2%। हाँ ये दोनों वैल्यूज से पता चल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच मोर एफिशिएंट देन एनारोबिक रेस्पिरेशन,
बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन में अप्रोक्सीमेटली 57% इज लॉस्ट एज हीट. एनारोबिक में हीट कितना जा रहा है देखो, ऑलमोस्ट 97%. गेटिंग इट? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिसएडवांटेज क्या होता है कि सेल में बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाती है, एंड विच इज नॉट इवन यूज्ड बाय द सेल. वो तो रेडिएट हो जा रहे हैं, सेल गर्म हो जा रहा है. That is why anaerobic respiration is found in only few organisms who are able to withstand that. But otherwise, anaerobic respiration is more efficient. ये values इसीलिए calculate करवाया. Now is it clear? हाँ. ठीक है, अच्छी तरह से. आज मैथमेटिक्स का ओवरडोज ही हो रहा है तुझे. राइट? ठीक है. तो दैट वाज द बैलेंस शीट. ओके, एंड ये समरी है एरोबिक रेस्पिरेशन का कि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुविक एसिड बना, है ना. दैट पायरुविक एसिड गोज टू द माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स में एसिटाइलेशन हुआ, एंड इन दैट एसिटाइलेशन, आफ्टर दैट एसिटाइलेशन द Krebs cycle takes place in the matrix, and then it goes to the F1 particles on the inner membrane जहाँ पे ETC होता है, and this water molecule is given out. तो ये बहुत अच्छे से पूरा रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, तो ETS का भी सिग्निफिकेंस वगैरह समझा अच्छे से. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है कि हम लोग अभी पूरा रेस्पिरेशन ग्लूकोज के पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं. ओके, बट समटाइम्स अमीनो एसिड्स फ्रॉम प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड्स फ्रॉम लिपिड्स, even they participate in Krebs cycle through acetyl coenzyme. ये देखो कि amino acids and fatty acids. So sometimes these both are also included in the acetylation step. Because sometimes cell में glucose नहीं होगा. जैसे हमने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में क्या बोला था, the instant requirement as a respiratory substrate is glucose. Carbohydrate is the most preferred source of energy. बट अगर कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला तो नेक्स्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच द सेल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इज फैट्स. अगर फैट्स भी नहीं है तो प्रोटीन्स. ओके, तो ऑप्शन तो होना ही चाहिए. ठीक है, कि कोई ना कोई सबस्ट्रेट को यूज करना है, रेस्पिरेशन करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करना है, बिकॉज एनर्जी चाहिए सेल को हमेशा. ठीक है, so that was about aerobic respiration. Okay, and इसका important एक और point दिया हुआ है about the utility of stepwise oxidation. कि ये जो हमने प्रोसेस अभी देखा, okay, respiration में से जो हो रहा है, this is a stepwise oxidation. अभी सेल के अंदर सपोज इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स ना होकर एक ही रिएक्शन होता, ये ग्लूकोज को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो गया. इट वुड हैव बीन वेरी सिंपल. दिस क्वेश्चन कैन अराइज इन योर माइंड कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना, इतने सारे रिएक्शन, इतने सारे एंजाइम्स क्यों है, व्हाई डिड द सेल नॉट कीप इट वेरी सिंपल. बट उसमें भी एडवांटेज है कि इवोल्यूशन में अगर ऐसा डेवलप हुआ है, एंड इफ द सेल इज हैविंग सो मेनी स्टेप्स, तो इट इज लाइक एट एवरी स्टेप देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन. At every step, there is some oxidation going on, rather than one full oxidation happening simultaneously. Because अगर एक ही झटके में पूरा रिएक्शन खत्म हो जाता तो cell would have got damaged. It's like, for example, you understand कि suppose at a time you are very thirsty. Okay, बहुत प्यास लगे, एकदम गला सूख गया, तो कितना भी प्यास लगाओ, पानी पीते वक्त you will take a glass and you will drink. ड्रम उठा के पिएगी क्या पानी, बहुत प्यास लगा बोल के? नहीं. ओके, थोड़ा थोड़ा करके ही पिएगी, बिकॉज एकदम से प्यास लगा एंड सडनली ज्यादा पानी पी लिया तो दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग. गेटिंग इट? तो एक स्टेप वाइज प्रोसेस होने की वजह से सेल्स को भी कांस्टेंट एटीपी एनर्जी मिलता जाता. दैट इज द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट. एंड उसमें क्या हो जाता है कि एडवांटेज कि यू आर गेटिंग इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो सेल्स में दूसरे प्रोसेस में भी काम आते हैं. अगर इंटरमीडिएट नहीं होता तो दूसरे प्रोसेस भी उतने ही इफेक्ट हो जाते हैं. एंड मेनी अ टाइम, जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया कि सेल्स मे नॉट नीड टू डू ऑल द प्रोसेस.
कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन भी है, बट उस वक्त सेल को रेस्पिरेशन करने की जरूरत नहीं, so that regulation can be done at any stage, so that unnecessary wastage of energy does not take place. तो इसीलिए स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन इज नेसेसरी। कि इमेजिन इतने सारे रिएक्शंस हमने देखे, बट ये सारे रिएक्शंस सेल्स के अंदर एवोल्यूशन में डेवलप हुआ है। इमेजिन कितने सारे मॉलिक्यूल्स का एवोल्यूशन हुआ रहेगा, सो मेनी एंजाइम्स, कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स, जो कितना कॉन्स्टेंटली रिसाइकल हो रहा है सेल। तो ये सब डेवलप हुआ, इसके पीछे रीजन यही है कि स्लो से स्टेप वाइज हो तो कंसिस्टेंट हो, एंड इट कैन बी रेगुलेटेड एट एनी स्टेज, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज व्हाई स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, सो उसमें जो प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, टाइम टू टाइम केयरफुली उसको रिमूव कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं, एंड अलग अलग स्टेप्स में एटीपी एनर्जी बनते हैं। ठीक है, अभी जैसे इफ यू थिंक अबाउट अ सिचुएशन वेयर से यू आर वेरी हंग्री, बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया फॉर एग्जाम्पल, तो यू आर वेरी वेरी वीक एंड टायर्ड, बट इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही थोड़ा सा खा लिए तो रोबोट की तरह नाचने लगेगी, एकदम इंस्टेंट एनर्जी नहीं आता है ना। ओके, इट टेक्स टाइम, सेल्स को भी टाइम लगता है कि कुछ खाने को दिया, स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज करो, एनर्जी प्रोड्यूस करो। ठीक है, समझा ये सब पार्ट अच्छे से, राइट? सो कितना प्लानिंग के साथ बनाया गया सेल्स में, है ना, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। सो दो देयर इज सम डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बट दैट कॉम्प्लेक्सिटी मेक्स इट मोर एफिशिएंट। अभी जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ही रिएक्शन था, लैक्टिक एसिड बना या तो इथेनॉल बना, बट सी हाउ एफिशिएंट इट इज। ईस्ट के सेल्स भी अगर उसके अंदर 13% से ज्यादा अल्कोहल कंसंट्रेशन हो गया तो इट कमिट्स सुसाइड, इट्स लाइक इट इज पॉइजनिंग इटसेल्फ टू डेथ, बिकॉज कोई मतलब नहीं है उसके अंदर इतना सारा कॉन्सेंट्रेट अल्कोहल बनने का। गेटिंग इट? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन अपने मसल्स में होता है, तो इट स्टार्ट्स पेनिंग, तो दैट इज इंडिकेटर। इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा कुछ नहीं। ओके, then you have a concept very important called respiratory quotient, called RQ. okay, ये जो है respiratory quotient, ये एक रेशियो है। ठीक है, किस चीज का रेशियो है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो अगर मैं न्यूमरेटर में लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, डिनोमिनेटर में लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में जो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दैट आई विल राइट, एंड उसका जो रेशियो मिलेगा व्हिच डजंट हैव एनी यूनिट, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। तो ये जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है, दिस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर बोला जाए तो 3 है, बोल सकते, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। The most common one is carbohydrates, glucose. If you see the general reaction of respiration, okay, अगर carbohydrates को respiratory substrate use करते हैं तो it is completely oxidized. So जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ उतना ही ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, so RQ is 1 if carbohydrates is used as a substrate. Okay, and RQ का 1 होना मतलब it is stable, it is completely oxidized. Okay, but अगर suppose carbohydrates नहीं है तो fats or proteins, so when fats or proteins are used as a substrate, so RQ is less than 1. Why it is less than 1? Less than 1 का मतलब ये हो गया कि denominator is more than the numerator. Correct? So it means what? Amount of CO2 evolved is less than the oxygen consumed. So it is not complete oxidation. इसीलिए fats and proteins का RQ less than 1 है।
So RQ generally for fats it comes out to be 0.7 and RQ for proteins is normally 0.9. Okay, तो ये याद रखना है, ठीक है. कुछ रिएक्शंस हो तो मैं बताता हूँ. अभी ये बताओ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आरक्यू कितना होगा. इट इज इंफिनिटी बिकॉज डिनोमिनेटर में इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर इज व्हाट, जीरो. एंड किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर जीरो आता है दैट मीन्स द वैल्यू इज इंफिनिटी. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट याद रखना. एरोबिक रेस्पिरेशन में इफ द आरक्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज आस्क्ड इट इज ऑलवेज 1 बिकॉज जितना CO2 न्यूमरेटर मतलब CO2 जीरो हुआ तो नॉट डिफाइन ना. हाँ, CO2 अगर जीरो हो गया तो इट इज ओनली जीरो, बट ऐसा किसी रेस्पिरेशन में हो ही नहीं रहा है ना. ओके, हाँ. हो ही नहीं रहा है, कोई भी सबस्ट्रेट हो तो CO2 इवॉल्व हो रहा है पक्का, बट ऑक्सीजन कंजम्पशन वेरी कर रहा है. जैसे फैट्स एंड प्रोटीन्स का भी अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इज मोर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व. तो CO2 इवॉल्व जीरो नहीं है बट कम है. ठीक है, इसलिए RQ इज लेस. अगर CO2 इवॉल्व जीरो हो जाता था तो RQ वुड हैव बीन जीरो. बट एनारोबिक में डिनोमिनेटर ही जीरो बिकॉज ऑक्सीजन ही यूज नहीं हो रहा है बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसलिए इंफिनिटी. इजी है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, है ना. So now the last part of the lesson, we have understood all the physiological process behind respiration. So as a summary, the significance. तो ये तो हमने बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं ये ऑलरेडी, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप. नाउ व्हेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, अगर एग्जाम में शॉर्ट आंसर लिखने को आया सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, तो यू हैव ऑल द 6 पॉइंट्स रेडी इन फ्रंट ऑफ यू, बट ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि जो मेजर पॉइंट्स है वो पहले लिखना है. तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या होगा, इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी, बिकॉज अल्टीमेटली रेस्पिरेशन इसी के लिए किया जा रहा है कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. एनर्जी प्रोडक्शन फॉर व्हाट, बायोसिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर मटेरियल्स. अलग अलग टाइप के कंपाउंड सेल्स के अंदर बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है. एंड रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अदर सेल एक्टिविटीज, जैसे सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर्स है, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट है ना, न्यूक्लियर डिवीजन. सो मेनी एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन जिसको एनर्जी चाहिए. सेल्स के ग्रोथ, रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट पार्ट्स, सेल का मूवमेंट जैसे सीलिया फ्लैजेला रहेगा तो, राइट. ऑल दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी. Okay, and many intermediates of the Krebs cycle are used as building blocks for synthesis of other compounds in the cell, amino acids, amides. ये सब बनाने के लिए Krebs cycle के intermediates काम आते हैं. So that is also one of the significance of respiration, है ना. Then respiration along with photosynthesis. You remember दोनों का जो general reaction था, they were exactly the opposites. कि रेस्पिरेशन में जो रिएक्टेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं एंड वाइस वर्सा. तो इन दोनों के वजह से देयर इज अ बैलेंस बिटवीन CO2 एंड ऑक्सीजन मेंशन्ड इन द एटमॉस्फेयर, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, है ना. सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो तो नहीं चलेगा, सिर्फ रेस्पिरेशन भी नहीं चलेगा. ओके, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें फर्मेंटेशन इन्वॉल्व है, सेल्स के लिए मे बी इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट बट फॉर अस इट इज वेरी सिग्निफिकेंट. ये फर्मेंटेशन वाला प्रिंसिपल हम लोग कितना यूज करते हैं डेली लाइफ में. यू आर गेटिंग कर्ड, ओके, यू आर एबल टू हैव दोस टेस्टी डोसा एंड इडली, यू समटाइम्स गेट अल्कोहल, राइट. सो ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, फर्मेंटिंग. एंड दूसरे इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, बेकरीज में, डिस्टिलरीज, लेदर, टेक्सटाइल, पेपर एक्सेट्रा. ओके, then energy is also used to convert
insoluble form to soluble forms. बट ये माइनर सिग्निफिकेंस, इसलिए 5 पॉइंट्स का ऑर्डर देखना कैसे लिखा हुआ, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना. ओके, सो अच्छी तरह से समझा. रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, द नेम इज जस्टिफाइड, है ना. पूरा प्रोसेस ध्यान रखना है. एंड एट एवरी स्टेज आई हैव टोल्ड यू द सिग्निफिकेंस कि उसमें NADH2 क्यों ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्यों ऐसे जा रहा है, क्यों ATP बना रहा है. लाइक एवरी स्टेप इज वेरी वेरी एफिशिएंटली मैनेज्ड. ठीक है. So with that we come to the end of this small lesson also, respiration and energy transfer. कैसा लगा? अच्छा था? अच्छा था. है ना? हाँ. Yes. Like it is था. logical था and it is within understanding also. थोड़ा सा explanation अगर ध्यान से सुनते हैं ना, तो it is not difficult. डायग्राम वो ये है बट मतलब समरी इजी है. Summary easy है. Yeah, exactly. And it's like एक बार समझ में आ गया ना, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो it will be easy for you. है ना. इसको एक बार में तो होएगा नहीं, लिख के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. Only then it is going to happen. जैसे फोटोसिंथेसिस में जो हमने देखा था, बहुत सारे पाथवेज वगैरह थे, सेम वे हियर आल्सो. ये 2 लेसन्स है, बट पूरा प्लांट फिजियोलॉजी का ये 2 बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट पाथवेज है, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द फिजियोलॉजी इन प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन दीज 2. Okay, that is why it is very significant. Okay, so towards the end, quickly let us have a quick revision of the entire lesson. Ready? You don't have a choice. Right? Okay. So there will be some questions on the screen. Just answer them. ठीक है. अच्छा है ना, प्रैक्टिस हो जाता है and even you get to recollect. याद है कितना है ना. ये दिख रहा है स्क्रीन? हाँ. Okay. So respiration and energy transfer. ठीक है. First question. You read the question and tell the answer. Both. The first stable compound produced in TCA cycle is stable. First stable compound. Citric acid. It is citric acid. Correct. और TCA का full form क्या है? Try. अच्छा, ऐसे इंस्टॉलमेंट में बोलेगा. Citric. नहीं, ट्राई सिट्रिक नहीं है. हाँ. तो क्या है? Try. Citric acid is which type of a compound? Organic chemistry का functional group. Carboxylic acid. Correct. Very good. हाँ. TCA stands for tricarboxylic acid. Tricarb. Very good. Next. Cytochrome C oxidase in ETC contains 2 dash. हाँ, इसमें क्या था? कॉपर नहीं. Copper है, copper. It is copper. हाँ, कैल्शियम का Okay. Yes. Calcium नहीं होगा. Okay. हाँ, वो CC था ना इसलिए. हाँ. In TCA cycle, then oxalo क्या? Succinic acid. Succinic ना? Oxalosuccinic. Oxalosuccinic acid undergoes decarboxylation. It produces dash acid. Oxalosuccinic acid is how many carbon atoms? Succinic. Oxalosuccinic is how many carbon atoms? 6. Correct. तो उसमें decarboxylation हुआ, तो उसमें कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा? कितने कार्बन का?
हाँ कीटो हाँ, कीटो के पूरा बोल। हाँ इट इज कीटो ग्लूटारिक। अल्फा मुझे कीटो वो ग्लूटारिक। ये हाँ अल्फा भी है, हाँ हाँ, अल्फा देखो, भी है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, दैट इज द ओनली कंपाउंड विच इज कीटो नहीं 5 आता कार्बन। है English। हाँ खाली कीटो बोल दिया है ना। ओके, नेक्स्ट। in the ETS ubiquinone is also known as the coenzyme in ETS ना। ubiquinone is one of the electron acceptors, electron carriers. तो उसको करेक्ट, इट इज कोएंजाइम क्यू, करेक्ट, गुड। The enzyme involved in the first step of glycolysis and responsible for its major regulation is first step. Isomerase? नहीं, ग्लाइकोलाइसिस का एकदम पहला स्टेप, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लूकोज। Dehydrogenase? नहीं, सबसे पहले क्या होता है ग्लूकोज का? Breakdown? नहीं, पहले ही स्टेप में ब्रेकडाउन हो रहा है, नहीं ना। ग्लाइकोलाइसिस का नहीं। जो प्रेपरेटरी फेज है उसमें ब्रेकडाउन है ही नहीं, 6 हाँ कार्बन का 6 कार्बन ही रह रहा है ना। हाँ तो ट्रांसफरेज। इट इज काइनेज। ओके, ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, याद है? हाँ तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट मतलब काइनेज, एडिशन ऑफ ग्लूकोकाइनेज या तो हेक्सोकाइनेज। ग्लाइकोलाइसिस हाँ का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, बट बाकी तीन भी है ना। बाद में आते हैं ना, बट फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? काइनेज। हाँ Yeah. The dash takes place in the F1 particle of mitochondria TCA हाँ, cycle. F1 नहीं, that dash particles. takes F1 that dash takes place तो क्या क्या है ऑप्शन में? हाँ ETS हाँ, it is ETS. वो मैट्रिक्स में होता है। हाँ, correct. वो माइटोकॉन्ड्रिया देखा मैं। Okay. Glycolysis does not require dash to take place. NAD plus हाँ, ग्लाइकोलाइसिस को NAD प्लस चाहिए, उसी का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ना एंड में। हाँ ऑक्सीजन हाँ, नहीं हुआ तो भी चलेगा। exactly, because that is a common step for anaerobic also ना, हाँ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। the RQ of dash is always 1. हाँ carbohydrate. करेक्ट। Glycolysis is also called as EMP pathway. वेरी गुड। ये HS के क्या है बता? था रेस्पिरेशन में नहीं था, दूसरे लेसन। साइंटिस्ट के नाम रहेगा इसका। यस, इट इज हैच, स्लैक एंड कोचेंट। हेनरी? ओ हाँ कौन है हाँ हेनरी? हाँ कौन है अभी? वो हेनरी भी था, एक है बुक में साइंटिस्ट। HSK is the other name for C4 pathway of photosynthesis, याद है? हाँ हाँ है ना? हाँ कैम भी उसमें देखा था, याद है? हाँ कैम हाँ फोटोसिंथेसिस में। व्हाट इज दैट फुल वो फॉर्म? नाइट वाला रात को होता है जो। हाँ वो एग्जाम क्या में वाइवा में ऐसे आंसर मत दे। ओके, कैम का फुल फॉर्म हाँ क्या है? कार्बोक्सिलिक। नहीं नहीं, you remember crassulation acid हाँ हाँ metabolism, succulent हाँ plants में जो होते हैं, है ना? हाँ वही Yes. डेजर्ट प्लांट। हाँ, correct, good. Next. When 3 molecules of glucose undergoes complete oxidation, the net gain of ATP molecules would be 3 molecules of glucose ना, मतलब 1 molecule में 38
तो 38 into 3 यहाँ पे क्या एक्चुअली देना है? ऑप्शंस में 38 थोड़ा सा into गड़बड़ हो गया, बट यू टेल मी द नियरेस्ट आंसर. ठीक है 38 into 3 ऐसे करना, शॉर्टकट में कैसे करने का पता है. 38 का नियरेस्ट राउंड फिगर है 40. 40 इंटू हाँ 3 कितना होता है? 120 तो 40 में से 38 दो कम है, तो 120 में से 6 कम कर दे. हाँ कितना 120 हुआ? में से वो 4. 114 तो उसका नियरेस्ट ना ऑप्शन क्या है यहाँ पर? नियरेस्ट 114 का 108 ऐसे मेंटल कैलकुलेशन फटाफट करने का. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट हाँ बताता हूँ कि डू यू नो द शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एनी 2 डिजिट नंबर विद 11? नहीं ये देख, फॉर एग्जांपल 27. ठीक है, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना. दिस इज ओनली फॉर 2 डिजिट नंबर्स विद 11. तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, एक कैलकुलेशन लिखेंगे 7, है ना, देन यू विल राइट 2, फिर यहाँ पे क्रॉस लिखते हैं, फिर से 7 2. दिस इज हाउ यू शो. रफ वर्क में ऐसे ही करते हैं. ये सिंपल हाँ मेथड है. क्या करना है पता है कि व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट इन अ शॉर्टकट वे, जैसे ये 27 है, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट डिजिट है 7, हाँ so that I will write as it is. हाँ Okay, 2 plus 7 कितना? 9 9. First digit 2. That's your answer. ओ Okay, any 2 digit number multiplied by 11. अभी मुझे वर्बली बता, बिना कैलकुलेशन किए, 34 इंटू 11 कितना? 34 into 11 4 हम्म 34 ना हम्म हाँ 34 का 34 फिर 7 हम्म हाँ और 3 हाँ तो 3 4 आंसर 7 374. हाँ हाँ 374 Okay, similarly 62 into हाँ 11. 62 into 11 62 का 2 8 6 8 2 करेक्ट. ये देख, हो गया ना फटाफट. हाँ 15 into 11 15. 15 into 11 हम्म 1 हम्म 6 5 ये देख, हो गया ना काम आसान. So every time you don't need a rough work, right? अभी ये हाँ देख, suppose I am having say बड़ा नंबर है 97 into 11. तो क्या करना होगा? लास्ट डिजिट 7 as it is. 9 plus 9 7. plus 7 अरे बाप रे, अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. तो 9 plus 7. हे भगवान. 9 sorry 16 हाँ बाप रे, फाइनली इट इज 16. तो पूरा 16 नहीं लिखूंगा, 6 and 1 कैरी. कैरी फिर पहले तो डिजिट 9 एज इट इज लिखते हैं हम लोग, तो उसकी जगह पे 9 plus 1, दैट इज 10. तो 1067 इज योर आंसर. हाँ इफ अगर कैरी वाला नंबर आता है तो ऐसे करना. इजी है. हाँ तो ये प्रैक्टिस कर, हाँ है ना. नाउ एक और चीज मैं बताता हूँ. तो ये 2 ट्रिक्स मुझे पता है, तो मैं बता देता हूँ कि एनी 2 डिजिट नंबर विथ एनी अदर 2 डिजिट नंबर. ओके, जैसे 24 मल्टीप्लाइड विथ से 32. ठीक है, तो क्या करना है, लास्ट के दोनों डिजिट्स, दोनों नंबर्स के. ओके, 4 इंटू 2 8 8. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट, सेकंड नंबर का सेकंड डिजिट. 2 इंटू 2 4 4. फर्स्ट नंबर का सेकंड डिजिट, सेकंड नंबर का फर्स्ट डिजिट. 4 इंटू 3
12. 12. तो 4 plus 12 कितना? 4 plus 12. 12. 16. 16. तो I will write 6, 1 carry. अभी दोनों नंबर्स के फर्स्ट डिजिट्स 2 into 3 6, 7. plus 7. 7, 6, 8. करेक्ट. Okay. एक ही स्टेप में आंसर आ गया. Got it? अभी सपोज से you will find 36 multiplied by 25. बता. 6 into 5. 0, 3 carry. करेक्ट. अभी 15. 15 plus 12. करेक्ट. 12. 15 plus 12 कितना हुआ? 20. ये बहुत स्लो है तेरा. 27. हाँ. and plus 3 plus 3, 27. 30. 30. so 0 So and 0, again 3 carry. वापस ठीक है. 6, 9. that's your answer. 900. तो मतलब लास्ट के दो फिर क्रॉस एंड फर्स्ट के दो. दिस इज फॉर एनी 2 digit नंबर विथ एनी अदर 2 digit नंबर. ये ट्रिक्स याद रख. तो योर कैलकुलेशंस विल बी फास्टर एंड टाइम बचेगा. स्पेशली एग्जाम में रफ वर्क वगैरह करना है फिजिक्स के सम्स में सब, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड इसमें मिस्टेक होगा नहीं अनलेस एंड अनटिल 2 plus 3 को तूने 6 लिखा तो आई कांट हेल्प इट. ठीक है. दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके नेक्स्ट. The net gain of glycolysis from one glucose molecule is net gain. Total नहीं ना? नेट Glycolysis. हाँ, glycolysis से 280. correct. next. Anaerobic respiration in muscle cell and bacterial cell produce lactic acid. correct. The TCA cycle begins with a decarboxylation reaction. नहीं. नहीं, decarboxylation dehydration कैसे? होता है. नहीं है. डिहाइड्रेशन भी नहीं है. H निकलता है ना? नहीं. see acetyl coenzyme A condenses with oxaloacetic acid. तब जाके citric acid मिलता है ना पहले स्टेप में. Okay. 2 carbon plus 4 carbon giving you 6 carbon. so वो कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है. आएगा. प्रैक्टिस करते रहे. The formation of acetyl coenzyme requires dash as the cofactor. Magnesium Mg plus 2. and correct. each NADH2 molecule has the potential to produce dash 3 ATP molecules. correct. Glycolysis occurs in the cytoplasm. correct. next. Okay. एक मिनट. हाँ. ये वाला ब्लू वाला. In glycolysis, 2-PGA loses a dash molecule to form phosphenol pyruvic acid molecule. Phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol, हाँ. 2-PGA loses. 2-PGA मतलब what is the full form? PGA ही था ना, लिखा डायग्राम. हाँ बट उसका फुल फॉर्म है ना. Phosphorylation. phosphoglyceric acid. हाँ, phosphoglyceric acid. So phosphoglyceric acid to phosphoenol pyruvic acid. It happens by the loss of
CO2. water molecule. Oh, water. Okay. Yes. There is R dash molecule of FADH2 produced in each Krebs cycle during aerobic respiration. हाँ, एक Krebs cycle में की दो दोनों मिलाकर एरोबिक रेस्पिरेशन अगर बोला जाए तो इट इज एज्यूम्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. दोनों मिलाकर ना तो 4 नहीं एक दोनों मिला क्या है FADH2 है. FADH2 हाँ, तो दो करेक्ट. NADH2 है. हाँ. The cleavage of fructose 6 biphosphate in glycolysis is catalyzed by the enzyme isomerase. आइसोमरेज बाद में आते हैं. पहले जो उसका ब्रेकडाउन हो रहा है 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेकिंग अप इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, वो होता है एल्डोलेस. ओके. एल्डोलेस में 2 स्प्लिटिंग अप हो रहे हैं एंड देन दोनों आइसोमर्स कन्वर्ट हो जा रहे हैं एक ही में बाय आइसोमरेज. ओके. एंड लास्टली At the end of ETS dash molecule is produced. Water. वाटर, मेटाबॉलिक वाटर करके जो बोला है ना. यस. तो अच्छी तरह समझा पूरा. हाँ. ठीक है. सो रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर इज कंप्लीट. ओके. अच्छे से प्रैक्टिस कर, पूरा रीड कर प्रॉपरली, यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग. एंड लिख के प्रैक्टिस कर. ठीक है. हाँ. ओके.